Good morning, students. Welcome back to Vinayak School's online study app. In last previous lecture, I taught Unit First, Environmental Concerns. Reading 1, Uttarakhand, Warning Bells on Deaf Ears. So, I hope you will complete first chapter and next chapter I will teach about reading 2, The Last Leopard. Chapter name is The Last Leopard. So let's start reading 2 lesson second, The Last Leopard. Listen carefully, students, and write question answer about completing lesson 2, and chapter name is The Last Leopard. So let's start this chapter. Hello students, I welcome you all in English classes. So today we will study the next chapter, the second chapter of your book, that is The Last Leopard. So this story basically is an extract from a story called The Last Leopard written by Lawrence and John. So this story is about a leopard called Khan. Here is a girl, Martin, and her grandmother and her best friend, Ben, are in Zimbabwe to help her grandmother's friend, Sadi, to manage a hotel. But Sadi has encountered a lot of problems from hunters and treasure seekers. These people want to scare Sadi away from that land in the hope of capturing Khan, a legendary giant leopard. So this let's read the story and find out what's in the story. So, very first paragraph. All around her, the hills of metaphors unfurl in lumpy fold of green and brown. So, all around her here is a Martin की बात हो रही है यहाँ पर. The hills of metaphors is a place in Zimbabwe. और वहाँ की हिल्स की आप कह सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन दे रही है यहाँ पर. अनफोल्ड इन लंपी फोल्ड्स of green and brown. उनका hills का appearance कैसा है? Brown and green. As far as Martin could tell, the only things moving in the shadowed valley below were the horses tethered at the bottom of the mountain. तो वो क्या कहती हैं कि उन हिल्स में अगर कोई चीज मूविंग है, कोई हिलने डुलने वाली कोई चीज है, तो वो सिर्फ क्या है? हॉर्सेस हैं, जो कि टेथर्ड मीन्स होता है बंधे हुए, टाइड अप. टेथर्ड एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के नीचे पेड़ों के साथ जो आप कह सकते हैं पेड़ों में रस्सी बांध के जो हॉर्सेस बांधे हुए हैं रस्सी से, वो ही एक ऐसी चीज है जो मूविंग है वहां पर. और बाकी अलोन डेजी, डेजी इज स्मॉल एनिमल होता है जो रेड की तरह दिखता है, चूहे की तरह छोटा सा. अ फेवरेट फूड ऑफ लेपर्ड्स, जो कि लेपर्ड का फेवरेट फूड भी है. स्निफ्ड अलोंग द बेस ऑफ द केव अंटिल इट सॉ इट हैड कंपनी एंड डार्टेड अवे. वहां पर आप कह सकते हैं सूंघते हुए घूमता रहता है, और जब तक उसको और कोई आप कह सकते हैं उसको कोई पकड़ने आता है या खाने आता है तो वो भाग जाता है एकदम से. दिस वाज द वी कैन से इंट्रोडक्शन और अपीयरेंस ऑफ दैट valley hills. So as it grew lighter, Martin went over to examine the paintings. She never got tired of looking at cave pictures, finding them endlessly fascinating and thrilling. And the sketches here were especially well preserved. Their dusky pink, grey, and ochre colors had survived thousands of years with barely a blemish. So यहाँ पर बात हो रही है, जो मार्टिन है वो एक केव के अंदर है जहाँ पर वो पेंटिंग्स देख रही है. She never got tired of looking at cave pictures. और जो केव में जितनी भी पेंटिंग बनी होती हैं, जो दीवारों पे बनी होती है, उनको देखने में वो कभी भी थकती नहीं है. और उनको वो कैसा फाइंड करती है, कैसा पहचानती है, या फिर कैसे तरीके से देखती है उन पिक्चर्स को, जैसे कि फाइंडिंग देम एज इन कि उनको जो उसको जो पेंटिंग है वो एंडलेसली फैसिनेटिंग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं एंड थ्रिलिंग भी लगती हैं. एंड द स्केचेस हेयर आर स्पेशली वेल प्रिजर्व, और आप कह सकते हैं बचा के, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा संभाल के और बहुत ज़्यादा प्रिजर्व हैं इस जितनी भी पेंटिंग्स या स्केचेस उस पर बने हुए हैं दीवारों पे, केव की दीवारों पे जो बने हुए हैं. द डस्की पिंक, ग्रे एंड ऑकर कलर होता है, आप कह सकते हैं जो गेरू का कलर होता है, दैट इज कॉल्ड ऑकर.
सो ये इस कलर की आप कह सकते पिक्चर्स हैं बनी हुई उस पे, और जितने भी पिक्चर पे कलर बने हुए हैं हैड सर्वाइव थाउजेंड्स ऑफ इयर्स विद बेयरली अ ब्लेमिश, मतलब कि जिस कलर से वो पेंटिंग बनी हुई है हजारों साल पहले बनी हुई थी, लेकिन वो अभी तक भी कैसी हैं, वैसी की वैसी हैं। जितना अगर आप कलर देखना चाहें जिसमें कलर पिंक कलर फिल्ड है तो वो पिंक ही है एज इट इज, ग्रे है तो ग्रे है, ऑकर है तो ऑकर है। दैट मीन्स वो जो पेंटिंग्स जो केव में वो मार्टिन अभी देख रही है वो बिल्कुल एज इट इज वैसी की वैसी ही है। देयर वर द यूजुअल सीन्स ऑफ हंस फीस्ट एंड सेरेमनीज, और उन पिक्चर्स में किस कौन कौन से सीन है, शिकार करते हुए और फीस्ट खाना खिलाते हुए, सेरेमनीज बहुत कोई किसी भी सेरेमनी का पिक्चर बना हुआ है दीवार पे। बट शी वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट देयर वर क्वाइट अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज पिक्चर्स एंड दोज इन द मेमोरी रूम केव एट सबुबोना, ऑलमोस्ट एज इफ दे वर द वर्क ऑफ द सेम आर्टिस्ट। और ये बहुत ज़्यादा उनके लिए आप कह सकते हैं सरप्राइजिंग है कि वहाँ की जो पेंटिंग है केव की और जो मेमोरी रूम जो केव है सबुबोना में, वो और ये वाली जो पिक्चर्स है वो बिल्कुल सेम है। ऐसा लगता है कि किसी एक ही आर्टिस्ट ने ये पिक्चर्स बनाई है। सो शी सपोज दैट द पेंटिंग टेक्निक्स ऑफ द सैंड हैड बीन पास डाउन थ्रू द जनरेशंस। तो वो कहती हैं कि हो सकता है ये जो उनको लगता है ऐसा, मार्टिन को ऐसा लगता है कि शी सपोज ऐसा लगता है उनको कि जो पेंटिंग टेक्निक्स हैं वो एक से दूसरे में आई है जनरेशन्स के थ्रू, इसीलिए जो पेंटिंग है वो सिमिलर उसको दिख रही है। सो जब वो पेंटिंग देख रही है उस टाइम पे उसमें क्या दिखता है उनको, वन इमेज वो सेट स्लाइटली अपार्ट, एक जो पिक्चर है वो थोड़ी सी अलग सी दिखती है, अलग से बनी हुई है आप कह सकते हैं। मार्टिन वेंडर्ड ओवर टू लुक एट इट, और उसको देखने में वो मतलब आप कह सकते हैं उस पिक्चर को सही से समझने के लिए वो उसको आगे पीछे होके देख रही है। इट शोड अ गर्ल स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस टू अ केव, और वो पिक्चर में क्या देखा मार्टिन ने कि वो पिक्चर उसको क्या दिखा रही है कि एक लड़की है, एक गर्ल है जो एक केव के एंट्रेंस पे खड़ी है। The cave Martin was in now, if its round mouth and guard-like pillar were anything to go by, and crouched on the pillar as if it were about to pounce, pounce, was a leopard. The leopard she had seen in the sand. अब उस पेंटिंग में क्या है कि एक लड़की केव के एंट्रेंस में खड़ी है और उसके ऊपर एक लेपर्ड है। एक लेपर्ड उस लड़की के उस पिक्चर में ऐसा दिख रहा है कि उस गर्ल के ऊपर एक दीवार के ऊपर एक लेपर्ड खड़ा है जो कि बिल्कुल उस पे आप कह सकते हैं छलांग मारने वाला होता है, और वो लेपर्ड उसको किसकी तरह लग रहा है, जो लेपर्ड उसने एक बार सैंड में मतलब कि फील्ड में देखा था। सो जैसे वो पेंटिंग देखते हैं तो मार्टिन फ्रोज, व्हाट इफ शी वॉज द गर्ल इन पिक्चर, व्हाट इफ द लेपर्ड। ना यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। वो क्या सोचती है मार्टिन कि अगर ऐसा हुआ कि जो पिक्चर में लड़की है वो मैं हुई और मेरे जो ये जो लेपर्ड दिख रहा है पिक्चर में वो यहीं कहीं गुफा में अगर हुआ तो क्या होगा। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द पेंटिंग विच शी इज वॉचिंग इस दीवार पे, एंड आप देख सकते हैं ऊपर लेपर्ड है। सो व्हाट शी वाज थिंकिंग दैट मार्टिन फ्रोज, किया उसने क्या सोचा है, ये जो लाइन लिखी है यहाँ पर, व्हाट इफ शी वाज द गर्ल इन द पिक्चर, जो पिक्चर में गर्ल दिख रही है उसको, दिस इज जो सर्कल में है, अगर ये लड़की मैं हुई और जो ऊपर लेपर्ड जो पेंटिंग में दिख रहा है वो लेपर्ड अगर इस केव में ऐसे ही हुआ तो क्या होगा। अब नाउ शी स्मेल्ड हिम बिफोर शी सॉ हिम। अब जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं वो जो पिक्चर में जो वो सोच रही थी वैसे वो लेपर्ड वहां पर था, उस दीवार के ऊपर था। बट शी स्मेल्ड हिम बिफोर शी सॉ हिम, मार्टिन ने उसको देखने से पहले स्मेल कर लिया था। इट वॉजेंट एन अनप्लेजेंट स्मेल, इफ एनीथिंग देयर वाज समथिंग वंडरफुल अबाउट इट, इट वाज द सेंट ऑफ अ वाइल्ड फ्री थिंग, बट इट वाज आल्सो द स्मेल ऑफ अ किलर। अब जो स्मेल उसने फील की थी वो स्मेल को कैसे डिस्क्राइब किया है यहाँ पर, दैट इट वॉजेंट एन अनप्लेजेंट स्मेल, एक बुरी स्मेल नहीं थी। देयर वॉज समथिंग वंडरफुल अबाउट इट, उसमें कुछ अच्छा था, और अच्छा क्या था, इट वॉज द सेंट ऑफ अ वाइल्ड, एक वाइल्ड फ्री थिंग, मतलब कि एक आप कह सकते हैं वो जो स्मेल थी वो वाइल्ड क्रिएचर की स्मेल थी। लेकिन यस एट द सेम टाइम बट इट वाज आल्सो द स्मेल ऑफ अ किलर, एक किलर की स्मेल भी थी, क्योंकि लेपर्ड जो है इंसानों को
खा जाते हैं, मार देते हैं. That's why she said, but it was also the smell of a killer. So at Savubona, Martin had rehearsed this moment 100 times in case she was ever confronted by a predator when out riding Jamie. अब सबूबोना में जब वो थी तो उन्होंने इस चीज़ को रिहर्स मतलब कि आप कह सकते हैं प्रैक्टिस बहुत बार की थी. ऐसे मोमेंट को आप कह सकते हैं ऐसा कोई मोमेंट आए उनकी लाइफ में, मार्टिन की लाइफ में, तो वो ऐसा उससे कैसे बाहर निकले इसकी रिहर्सल उन्होंने की हुई थी. यहाँ पर लिखा है इन के केस शी वॉज एवर कन्फ्रंटेड, अगर बाई चांस फ्यूचर में ऐसा होता है कभी उनको ऐसा फेस करना पड़े तो वो उससे कैसे बाहर निकलेंगे. प्रेडेटर मीन्स जो कोई शिकारी अगर आ जाए उसके सामने तो वो किस तरीके से उससे निकलेंगे, इस चीज़ की उन्होंने रिहर्सल पहले की हुई थी. बट इन हर इमेजिनेशन शी हैड ऑलवेज बीन एबल टू गैलॉप अवे. गैलॉप मीन्स होता है एकदम से भाग जाना, क्विक. ऑन द वाइट जिराफ नाउ शी वॉज अलोन. अब इमेजिनेशन सोचने में तो मतलब बट इन हर इमेजिनेशन उनकी सोच में वो ऐसी थी कि वो जल्दी से वहां से आप कह सकते हैं भाग सकती थी. लेकिन इस टाइम पे जब वो केव में है तो वो वहां पर क्या है, नाउ शी वॉज अलोन, अकेली है. शी ड्रैग्ड हर आईज अपवर्ड. अब सडनली जब उन्होंने देखा दीवार के ऊपर, वो अपनी आंखों को ऊपर की तरफ किया. द लेपर्ड वॉज ऑन द लेज अबव हर. और कॉर्नर पे क्या था, उस दीवार की कॉर्नर पे लेपर्ड था. regal both in stature and in size. स्टैचर मीन्स होता है आप कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, इट्स अ हाइट को हम कहते हैं स्टैचर, एंड साइज. एंड रीगल मीन्स आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा शानदार. तो जो लेपर्ड है वो यहाँ पर मार्टिन ने बताया कि जो लेपर्ड है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं साइज में और हाइट में बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत बड़ा सा था. हिज क्रीमी गोल्ड कोट हैड द रिच शीन ऑफ द फाइनेस्ट सिल्क. शीन होता है स्मूथ, और उनकी जो लेपर्ड है उसकी जो आप कह सकते हैं स्किन है बहुत ज़्यादा फाइन है, सिल्कन है, स्मूथ है. हिज ब्लैक स्पॉट्स ग्लीम. उसके जो स्पॉट्स हैं बॉडी पे वो बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं. एंड हिज येलो आइज ब्लेज्ड लाइक टोपैज. टोपैज एक स्टोन होता है जो कि बहुत चमकता है. तो उसकी जो आंखें थी लेपर्ड की वो टोपाज की तरह थी. शी हैड ऑलवेज एडमायर्ड लेपर्ड्स इन फोटोग्राफ्स. अब जो मार्टिन है वो जो लेपर्ड है उसको हमेशा से पसंद थे, लेकिन फोटोग्राफ्स में. ऑलवेज वांटेड टू सी एन अडल्ट वन इन रियल लाइफ. हमेशा देखना चाहती थी कि रियल में देखना चाहती थी लेपर्ड को. हर ग्लिम्स ऑफ द रेस्क्यूड लेपर्ड कब एट सबुबोना हैड बीन ब्रीफ बिकॉज Tendai had been anxious to return them to their mother, but nothing could have prepared her for the unquenchable. Unquenchable होता है, as you can see here, something that is unquenchable cannot be stopped, जिसको रोक नहीं सकते. अब ऐसा जो सीन था इस टाइम पे, अब जो खान है, जो लेपर्ड है, उसको कोई रोक नहीं सकता था इस टाइम पे मार्टिन पे अटैक करने के लिए. तो इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है अनक्वेंचेबल स्पिरिट ऑफ खान. Spirit of Khan in the flesh, power and wildness radiated from him. Now उस आप कह सकते हैं इस सिचुएशन से जो मार्टिन है उसको कोई इस टाइम पे बचा नहीं सकता था, या फिर जो खान है उसकी जो पावर या वाइल्डनेस रेडिएटिंग जो उसमें से निकल आप कह सकते हैं उसको फील हो रही थी कि ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड है. उस चीज़ से मार्टिन को इस टाइम पे कोई नहीं बचा सकता था. विद वन बाउंड ही स्मैश्ड हर टू द अर्थ. हिज ग्रेट पॉज thudded against her chest and his claws pierced her skin, and then she was on the ground panting and in pain. She could feel blood trickling down her armpit. अब जैसे ही मार्टिन ने ऊपर की तरफ देखा, जो लेपर्ड था उस पर जंप करता है एकदम से, और उसको कह सकते हैं उसके जो क्लॉज हैं वो अपने पंजे उसके आर्म पे, उसके हाथ पे कह सकते हैं एकदम गड़ा देता है बिल्कुल, जिससे उसकी जो आर्म पिट है, जो आर्म है, उसमें से ब्लड निकलने लगता है. खान स्टूड ओवर हर. अब वो जो गर्ल है, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक लाइक दिस, इस तरीके से वो उसको गिरा देता है लेपर्ड बिल्कुल, एंड उसके ब्लड निकलने लगता है. Khan stood over her, his huge paws on either side of her body. The look in his eyes was one of pure fury and hatred. अब fury is a great anger, हम जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा. तो जो खान है उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और hatred भी है, नफरत भी है. She knew he would kill her without a care. उस जो मार्टिन है उसको पता था कि वो उसको
किसी भी टाइम पे मार सकता है. He gave a savage snarl and his whiskered lips curled back over pink gums. It is a snarl is a बहुत जो लेपर्ड की जो साउंड होती है बहुत तेज तीखी वाली, जिस आप कह सकते हैं दहाड़ना हम कह सकते हैं, वो उतनी जोर से स्नॉल आवाज निकालता है. एंड हिज विस्कर्ड लिप्स आप कह सकते हैं जो उसके हेयर्स के पीछे से जो लिप्स दिख रहे थे कर्ल्ड बैक ओवर पिंक कम्स, और आप कह सकते हैं इस गुर्राने वाले जो सीन होता है दैट इज ही वाज, आप कह सकते हैं मार्टिन को डराने के लिए वो इस तरीके से कर रहा था. His teeth were so close to her throat that Martin could feel his hot breathe on her face. And जो खान लेपर्ड था वो मार्टिन के इतने पास था कि उसको उसकी जो एक ब्रेथ थी, सांस थी, वो महसूस कर गर्म सांस जो थी वो महसूस कर सकती थी. येल एंड वील कम रनिंग बेन हैड प्रॉमिस्ड. अब बेन जो है उसका जो फ्रेंड है उसने प्रॉमिस किया हुआ था कि तुम एक बार चिल्लाना हम तुम्हें बचाने के लिए आ जाएंगे. बट she would be dead long before he could get to her, and Khan would probably die too, because in spite of his clan oath, their guide Negvenia wouldn't hesitate to shoot the leopard and try to save her. Now जो मार्टिन है उसको पता था कि जो खान है उसको कभी भी मार सकता है या फिर खान कभी भी मर सकता है. क्यों? बिकॉज इन स्पाइट ऑफ हिज क्लैन ओथ, जो उनका गाइड था नेगवेन्या उसका नाम है, उनकी आप कह सकते हैं उन्होंने प्रॉमिस लिया हुआ था कि वो हेजिटेट नहीं करेंगे उसको शूट करने में, किसी भी आप एनिमल को, या फिर लेपर्ड की बात करें या खान की बात करें, यहाँ पर खान की बात हो रही है. शूट द लेपर्ड एंड ट्राई टू सेव हर. अगर मार्टिन को बचाना होगा तो वो किसी भी टाइम या किसी कैसे भी लेपर्ड को मारने में हेजिटेट नहीं करेंगे. Twice in the past, Martin's gift had allowed her to halt a deadly attack. Once, when a Rottweiler dog had tried to stop her from rescuing Jamie. और ऐसा 2 बार हुआ था मार्टिन की लाइफ में कि उसने 2 बार ऐसी सिचुएशन से निकली थी, आप कह सकते हैं, जब एक बार वो जिमी को बचाने वाली थी. एंड अनदर टाइम व्हेन अ ग्रेट वाइट शार्क वाज ऑन द वर्ज ऑफ ईटिंग एन अमेरिकन टूरिस्ट, और जब वाइट शार्क अमेरिकन टूरिस्ट को खाने वाली थी तब आप कह सकते हैं मार्टिन ने उनको बचाया था. बट दैट हैड रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन एंड अ सुप्रीम एफर्ट ऑफ विल. लेकिन उस टाइम पे आप कह सकते हैं या फिर ऐसा करने में, उनको बचाने में, रेस्क्यू करने में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत थी और एफर्ट की ज़रूरत थी. And now she was so frightened she was incapable of summoning either of these things. और इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और इनकेपेबल थी. समनिंग मीन्स होता है टू फाइंड स्ट्रेंथ और करेज. अब वो सारी स्ट्रेंथ और करेज उस टाइम पे उसमें नहीं थी, बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो आप कह सकते हैं अपने आप को बचा नहीं सकती थी इस टाइम पे. शी ले ऑन द ग्राउंड लाइक अ ब्लॉब ऑफ जेली एंड येट शी कुड hate the leopard for what he was about to do to her. There were very good reason for his loathing of humans. Loathing होता है hate, किसी से नफरत करना आप इसको. There were very good reason for loathing of humans. She understood that he was afraid himself. और ये आप कह सकते हैं एक बहुत गुड रीजन था. यहाँ लिखा येट शी कुड नॉट हेट द लेपर्ड. इस जबकि जो लेपर्ड है वो उसको मारने वाला था, उसके बाद भी यहाँ लिखा येट शी कुड नॉट हेट द लेपर्ड. वो उससे नफरत नहीं कर पा रही थी फॉर व्हाट ही वाज अबाउट टू डू टू हर, मतलब कि उसको मारने वाला था वो, इसलिए. फिर भी देयर वर वेरी गुड रीजन फॉर हिज लोदिंग ऑफ ह्यूमंस. लेकिन उसके पास जो लेपर्ड है उसके पास बहुत रीजन थे लोगों को, ह्यूमंस को हेट करने के लिए. शी अंडरस्टूड दैट ही वॉज अफ्रेड हिमसेल्फ. और उसको समझ में आ रहा था कि जो लेपर्ड है वो खुद भी क्या था, डरा हुआ था. बट देयर वाज समथिंग एल्स इन हिज येलो आईज, or something beside hatred and fear. There was sadness and tiredness that seemed bone deep, as if he was exhausted by the endless struggle to survive. अब यहाँ पर मार्टिन क्या कहते हैं, बट देयर वाज समथिंग एल्स इन हिज येलो आईज. उसकी जो आंखें थी लेपर्ड की, उनमें
नफरत और डर के अलावा भी कुछ था। एंड देयर वाज सैडनेस। वो क्या था? सैडनेस थी, टायर्डनेस, थकावट थी। दैट सेम बोन डीप, मतलब बहुत ज़्यादा इसको हम दिल से फील करते, बोन डीप, जो वो देख सकती थी बहुत ध्यान से। दैट एज इफ ही वॉज एग्जॉस्टेड बाय द एंडलेस स्ट्रगल टू सर्वाइव। ऐसा लगता था उसकी आंखों में देख के, लेपर्ड की आंखों में देख के मार्टिन को, कि जो लेपर्ड है वो थक चुका था अपने आप को बचाने में। And it was those things that made Martin realize that even without knowing him, she cared for him. और ये उनकी उस लेपर्ड की आंखों में देख के उसको रियलाइज हुआ कि बिना जाने लेपर्ड को कि वो फ्रेंडली है या नहीं, फिर भी शी केयर्ड फॉर हिम, उसके लिए वो केयर, आप कह सकते हैं केयरिंग वाली फीलिंग उसके लिए आई थी। शी फेल्ट द सेम प्योर लव फॉर द लेपर्ड शी हैड फेल्ट फॉर जेमी ऑन द नाइट दे फर्स्ट मेट। जिस टाइम वो जेमी से पहली बार मिली थी, जिस तरीके से जेमी को वो केयर करती थी, उस तरीके की फीलिंग वो लेपर्ड को देख कर उसको आई कि वो उसको, आप कह सकते हैं, हेट नहीं कर रही थी, बल्कि उसके लिए केयर फील कर रही थी। नाउ प्लीज डोंट हर्ट मी, शी सेड टू खान। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज टू हेल्प यू। वो कहती है मुझे मार, डोंट हर्ट मी, मुझे हर्ट नहीं करना। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज टू हेल्प यू, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। द लेपर्ड रोड, शी रिकग्नाइज इट एज द शी where is it? The leopard roared. She recognized it as the defiant, rage-filled sound she had heard on the first night at the Black Eagle. At close quarters, it was blood-curdling. और जो लेपर्ड था वो बहुत जोर से, बहुत रोर करता, बहुत तेज कहते हैं, कह सकते हैं, रोर करता है अपनी आवाज में। She recognized it as the defiant, sorry, डिफाइंड मीन्स होता है रिफ्यूज टू ओबे, किसी का कहना ना मानना, आप कह सकते हैं। शी रिकग्नाइज इट एज द डिफेंट रेज फिल्ड साउंड। अब वो इसको, जैसा कि लेपर्ड ने बहुत जोर से आप कह सकते हैं आवाज निकाली है, वो चीखा, तो उसने इससे क्या, उसकी आवाज से क्या रिकग्नाइज किया कि वो उसकी बात नहीं सुनना चाहता। जो उसने कहा कि ऑल आई वांट टू डू इज हेल्प यू, उसकी बात नहीं सुनना चाहता है। तो जब वो चीखा है तो उसको वो बात, एक रात की बात आ जाती है। दैट एट द ब्लैक, जब that heard on the first night at the Black Eagle at close quarters it was blood curdling। और जो जहाँ पर आप कह सकते हो वो सीन बता रही है, जहाँ पर, जहाँ से उनको याद आया इस साउंड का, जो कि साउंड कैसी थी, इट वाज ब्लड कर्डलिंग। ब्लड कर्डलिंग मीन्स होता है एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग, बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ थी। उससे उसको एक इंसिडेंट आ जाता है। देयर वॉज अ drumbeat echo of footsteps as Ben and Negbenia returned at स्पीड। अब उसको आवाज आती है मार्टिन को कि गुफा के अंदर, जो केव के अंदर, जो मार्टिन है उस केव में, पैरों की आवाज आती है, किसकी? बेन और नेगेवेन, जो उनका गाइड है उस कि वो अंदर आ रहे हैं, ऐसी आवाज उसको आती है। मार्टिन वॉज इन श्योर विच शी फियर्ड मोस्ट। अब मार्टिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ज्यादा किस बात से डर रही थी। दो बातें हैं यहाँ पर, दैट खान वुड किल हर बिफोर दे कुड रीच हर, or that they would reach her in time but shoot him to save her। अब ना दो चीजें क्या है कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज के लिए ज्यादा डरी हुई थी, कि खान उसको मार देगा उन लोगों के आने से पहले, या फिर वो इस बात से ज्यादा परेशान थी कि दैट जो बेन और नेगवेन्य है वो मार्टिन को बचा, मतलब उस लड़की को बचाने के चक्कर में खान को शूट ना कर दे। इन दोनों चीजों में वो कंफ्यूज थी कि वो ज्यादा किस चीज से डरी हुई है, या तो वो लेपर्ड को मार देंगे उस चीज से, या फिर लेपर्ड मार्टिन को मार देगा उस चीज से। सो शी वॉज अबाउट टू क्लोज हर आइज एंड प्रे दैट द एंड, whether it was the leopards or her own, was quick when someone of the wildness seemed to leave Khan। तो वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करती है, सोचती है, प्रे करती हैं कि जो एंड है, जो एंड होने वाला है, या तो वो लेपर्ड का एंड होगा या मेरा एंड होगा, जो भी है, जिसका भी एंड होगा वो जल्दी से हो जाए। लेकिन तब तक क्या होता है, when someone of the wildness seemed to leave Khan, he gave her a last अब यहाँ पर लिखा है एक वर्ड अनफैथमेबल, दैट मीन्स जो खान है, इसका मतलब होता है ऐसा लुक या फिर ऐसा एक्सप्रेशन जिससे आप कंफ्यूज हो कि
जो आप सोच रहे हैं, जो आपने देखा उसको समझ नहीं पाए, या फिर जो आप देख रहे हैं उसको भी समझ नहीं पाए। कंफ्यूजन वाला जो फीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड अनफैथमेबल। सो शी गेव हर अ लास्ट दैट लुक बिफोर मेल्टिंग अवे इनटू अ बुश। और वो जब वहां से लेपर्ड भाग रहा होता है उस टाइम, उससे पहले वो ऐसा लुक उसको देता है जो कि कंफ्यूजिंग होता है। मार्टिन स्क्रैम्बल टू हर फीट एंड डस्टेड हर सेल्फ ऑफ। जैसे वो भाग जाता है तो मार्टिन अपने आप को ऊपर उठाती है और अपने आप की जो उसके जो कपड़े गंदे हुए होते हैं नीचे गिर, उसने लेपर्ड ने उसको जो गिरा दिया होता है, तो उठ के वो अपने कपड़े साफ करने लगती है। बेन बर्स्ट आउट ऑफ द टनल माउथ फर्स्ट। वो सबसे पहले बेन एकदम भागता हुआ आता है और उसको बोलता है मार्टिन मार्टिन, ओह थैंक गॉड यू आर ओके। कि उसको देख के वो रिलीफ होता है कि हाँ तुम ठीक हो। डिड यू हेयर दैट रोर। और वो बोलता है कि तुमने वो लेपर्ड की रोर, मतलब जो आवाज होती है वो सुनी है। इट नियरली फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ अस, वी शुड नेवर हैव लेफ्ट यू। और बोलता है ये आवाज सुन के हम बहुत डर गए थे, हमें तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, इट जस्ट सीम्ड द सेफेस्ट थिंग टू डू। और वो बोलता है कि आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, मतलब वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या सोच रही थी क्या नहीं। इट वाज अ कंफ्यूज रिएक्शन आप कह सकते हो। as you can see here the picture and the word meanings. So here he suddenly became aware that Martin wasn't saying anything. Then he noticed the red specks on her t-shirt. Is that blood? वो देखता है कि मार्टिन जो है वो कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि वो उस कह सकते हैं सोच में थी कि क्या हुआ, या फिर वो लेपर्ड के लिए केयरिंग फील कर रही थी। तो सारे मिक्स रिएक्शन थे, इसलिए वो कुछ बोली नहीं। एंड सडनली जो बेन है उसने रियलाइज किया कि मार्टिन कुछ बोल नहीं रही, और सडनली वो क्या देखता है, उसकी जो टी शर्ट है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, उसकी जो टी शर्ट है उस पे ब्लड लगा हुआ है। बोलता है इज दैट ब्लड। सो इट वॉज ऑन द टिप ऑफ मार्टिन्स टंग टू टेल हिम अबाउट खान। और वो बोलने वाली थी, बताने वाली थी खान के बारे में, लेपर्ड के बारे में। बट देन Negbenia came rushing over and wanted them to leave right away in case Khan was still around. और एकदम से जो नगवेन्या होती है वो एंड वो वहां पर आ जाता है एकदम से, और दोनों को इंस्ट्रक्ट करता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, कि हो सकता है जो खान जो लेपर्ड है वो स्टिल उसी केव में ना हो। And Martin realized that there was no way of putting into words that had just taken place. और मार्टिन को रियलाइज होता है कि मैं जो भी अभी हुआ केव के अंदर वो उनको वर्ड्स में बता नहीं सकती है। He so how could she say that the leopard which had eluded means होता है, as you can see in here, someone or something that eludes you succeeds in avoiding you or escaping from you। मतलब कि which had elude अटैक करना आप कह सकते हैं। eluded rangers who had worked in Metapose for 20 years had locked her to the ground and stood over her with the clear intention of killing her. But that something had passed between them, an understanding, and at this last second he had changed his mind. अब वो सोच रहे हैं कि वो कैसे बता सकती थी कि जो लेपर्ड है जिसने जो मेटापोज में बहुत सारे वर्कर्स जो काम करते थे फॉर 20 years, उन पे इन सारों पे आप कह सकते हैं अटैक किया है। और उसने जो मार्टिन है उसको भी अटैक किया, लेकिन उसकी इंटेंशन थी उसको मारने की, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसने उसको नहीं मारा। एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एट द लास्ट सेकेंड
he had changed his mind, और उस लेपर्ड ने अपना माइंड चेंज कर दिया। सारी चीजें मतलब आप कह सकते हैं वो जो हुआ उस केव में उसके साथ, वो उसको बता नहीं सकती थी कि वो ऐसा क्यों हुआ या फिर ऐसा कैसे हुआ, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रही थी। हाउ कुड शी एक्सप्लेन दैट शी had looked into his blazing yellow eyes and seen beyond the hatred to the weirdly sadness of creature hunted almost every day of his existence। और वो आप कह सकते हैं आप बहुत ज्यादा पेन में भी है ये सोचते हुए कि हाउ कुड शी एक्सप्लेन, वो कैसे एक्सप्लेन करेगी cat that she had looked into his blazing yellow eyes। उसने लेपर्ड की आंखों में देखा है and, उसकी आंखों में नफरत और डर के आगे भी उसने क्या देखा है, एक सैडनेस देखी है एक क्रिएचर में कि उस एवरी डे जो उसको जो लेपर्ड है उसको जिंदा रहने के लिए कह सकते हैं आप कि बचना पड़ता है रोज। तो वो बहुत आप कह सकते हैं उसकी आंखों में उसने थकावट या फिर सैडनेस देखी थी। हाउ कुड शी एक्सप्लेन दैट विदाउट इवन नोइंग हिम शी लव्ड हिम, कि वो कैसे बता सकती थी उनको कि वो लेपर्ड को जाने बिना ही उसकी केयर कर रही थी, और बल्कि वो आप कह सकते हैं एक एनिमल है और उसको फिर भी वो उसकी केयर एज अ केयरिंग उसको देख रही थी। आई एम फाइन शी रिप्लाइड। वो सिर्फ क्या कहती है, सब एक्सप्लेन कुछ नहीं करती, वो कहती है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई स्लिप्ड ऑन अ रॉक दैट्स ऑल, मैं पत्थर से नीचे गिर गई थी और कुछ नहीं। आई डिड हेयर द रोड एंड आई वॉज अ बिट स्कैर्ड बट आई न्यू यू वर क्लोज बाय। वो बोलती मैंने भी रोड सुनी थी और मैं थोड़ा सा डर भी गई थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम लोग मेरे आसपास हो। आई न्यू You would come running if I needed you and you did। और मुझे पता था कि अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम मेरे पास चल के मुझे बचाने आ जाओगे, और ऐसा ही हुआ, तुम लोग मुझे आगे बचाने के लिए। सो दैट मार्टिन उसने बताया नहीं कुछ भी उन लोगों को कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी अपनी आप कह सकते हैं जो उसके साथ केव में हुआ था। तो आप दिस वाज द स्टोरी। एक्चुअली ये लेपर्ड ये एक्सट्रैक्ट है, ये छोटे सा एक्सट्रैक्ट है, स्टोरी बहुत बड़ी है इसमें, बट इससे हमें ये समझ में आया दैट जो लेपर्ड था खान है वो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था दैट ट्रेजर सीकर्स जो है जो हंटर्स है वो उस लेपर्ड के लिए आप कह सकते हैं उसको पकड़ने के लिए रोज इन हिल्स में घूमते रहते हैं। तो जो लेपर्ड है जो खान है वो अपनी लाइफ के लिए रोज उन लोगों से लड़ रहा है। तो दैट वाज वेरी सैड टू मार्टिन, कि ये बहुत दुखद था उसके लिए सोचने के लिए, इसलिए वो उस लेपर्ड के बारे में उसने नहीं बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। So that was it. This was the story. I hope you'll get the story. Listen to it carefully.